was a time when a lot of sectors were adversely hit, and now we read articles here and there that poverty has done, like, the damage that pandemic did to poverty. Now it is actually on the recovery path. So are we actually on the recovery path, or is it all a myth, or what does the article have to say? That's what we are going to read today. Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes. I'm Surbhi Gupta, and in these videos we pick up one of the topics from the newspaper. Normally, I refer to Mint newspaper, but sometimes also I refer to Indian Express Explain section if there's something good in the economic section, or Business Standard. But majorly, like 90% of the times, I only refer to Mint newspaper. And where would you get these newspapers? The link in the description box. The first link itself is of Telegram group. If you click on the Telegram link, you will be, forwarded to a Telegram group of Equipoise classes, and there I daily upload the daily newspaper like Mint, Business Standard, and sometimes Indian Express if I have used any article from it. But otherwise, majorly I share Mint newspaper to almost daily on that group. So you can get the newspaper because I read the newspaper in the morning. That's my ritual. So whenever I download a newspaper for myself, I share it on the group also. So you can go and access the newspaper from there for your ease, and then you can get to read the articles. Because if I pick up one article, say for example today, so I will record a video on that article, but I'm not sure that when will that video be posted. Most probably next week. So you have a lot of ample of time that if you understand the article, well and good. If you don't, and if you need my perspective, because I tend to explain the topic and the theme of the article, then how it connects with economics and everything in detail. So if you want to watch, you can watch the video, and you can always do 1.5x speed and watch the video if you find it longer, right? I think a lot of the introduction has got stretched a lot. So I'll quickly share the screen and let's get going with our article. Okay. So yeah, that's the article, everyone. Pandemic poverty to recovery, lessons from a roller coaster ride. That it has been a roller coaster ride. Let's learn our lessons now. That how has that happened, and what all further is needed to further, recover the economy. So India should formalize the labor market, expand social security schemes, improve healthcare access for future resilience. All right. So, okay, this article is by Rajesh Shukla, and he's managing director and chief executive officer of People Research on India's consumer economy. Okay, so these people, why do I read newspaper directly? Because some people say that, why don't you make notes out of it and maybe record a PPT and then teach from the PPT, which a lot of people does on YouTube. But for me, I feel writing a piece of an article, because I myself not a writer per se, but I love writing. And I realize the importance of pouring your heart and emotions to a piece of, all these words and paragraphs. So when it's basically, there's a मूर्ति and कुछ भी पत्थर का है, उसमें आप जान फूकते हो, वो आपके इमोशंस होते हैं. सो ये आर्टिकल्स डायरेक्टली रीड करने पे एक ऑथर के इमोशन निकल कर आते हैं. एक्चुअली में वो बात निकल कर आती है कि वो कहना क्या चाहते हैं. बिकॉज जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कहीं भी यूज करना है, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना है, कोई आर्टिकल, कोई ऐसे लिखना है, वहां कोट करना है, तो वहां आप केस स्टडी फॉर्म में, एक स्टोरी फॉर्म में बोल सकते हो. तो आपको इमोशन कोट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे, राइट? बिकॉज अदरवाइज क्या है, सुपरफिशियली तो हर कोई जी रहा है लाइफ में. सो हम थोड़ा अलग कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल. आई थिंक अ लॉट ऑफ ब्लैबरिंग हैज हैपेंड. So India has made remarkable progress in reducing income-based extreme poverty over past several years, but this journey has been anything but straightforward. This journey has not been straightforward, and from 2015 to 2023, the country experienced a sharp rise in extreme poverty, worsened by the COVID pandemic, followed by an equally dramatic recovery. So the recovery has also been dramatic. That's what we are saying. Household income data from Prices ICE 360 survey 2016, 21, and 23 provide critical insights into these fluctuations and shed light on how government interventions, economic resilience, and social programs shape the fight against extreme poverty. So they are in a way praising कि भाई 2015 से हमने पॉवर्टी देखी है एक्सट्रीम पर, एंड पैंडेमिक में वो और भी एक्सट्रीमली हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद से रिकवरी भी उतनी ड्रामेटिक हुई है, एंड कई सारा इकोनॉमिक रेजिलियंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब लोगों ने मदद की है इस पूरे आपके
जर्नी में, राइट। सो ऐसा क्या हुआ है, वो आर एस्टिमेट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आर डिराइव फ्रॉम इनकम डेटा एडजस्टेड टू, ये बेस ईयर प्राइसेस लिए हैं, इनकम डेटा यहाँ से एडजस्ट करा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ $1.9 बाय परचेजिंग पावर पैरिटी 11,207 एनुअल पर कैपिटा इनकम, ये पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे पुअर कहलाते हैं। To account for interstate rural urban differences in living costs, the annual cost of living index CPI was employed and data was taken from a National Statistical Office, okay, NSO. So अब आगे पढ़ते हैं, जो important चीज है वो यहाँ आ रही है कि in rural India extreme poverty was persistent issue even before the pandemic, राइट। वो पॉवर्टी कोई नई बात तो नहीं है, चैप्टर्स चले आ रहे हैं हर जगह, तो पॉवर्टी कोई नई बात तो है नहीं, ये तो पहले ही इशू रहा है, पैंडेमिक में वर्स हुआ है, लेकिन इशू तो पहले भी था जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। In 2015-16, 103.2 million people in rural areas were living in extreme poverty, accounting for 11.6% of the rural population. So 11.6% of the rural population was living in the poor conditions. By COVID year, however, this number nearly doubled. That means 21.9% हो गया number COVID में, ठीक है। The pandemic severity affected rural economy, which is largely dependent on agriculture and informal labor. अब इनफॉर्मल लेबर जितने भी विलेजेस के हैं जो आके काम करते हैं, सबके काम ही बंद हो गए, सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई, सब अफेक्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन इफेक्ट हो गया, क्या हर सेक्टर तो इफेक्ट हो गया। इन लोगों पे बहुत ज्यादा मेजर असर पड़ा था। लॉकडाउन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हिट रूरल लाइवलीहुड्स हार्ड, पुशिंग मिलियंस इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। मिलियंस मिलियंस जो जो जॉब कर रहे थे, जो अपर सेक्टर में थे, उनकी जॉब फिर भी वर्क फ्रॉम होम में चल रही थी, ठीक है, बट बहुत लोग अपनी जॉब खो चुके थे, वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी रूरल सेक्टर ही हिट हुआ था। अर्बन एरियाज while initially faring better saw a similar pattern, उन्होंने भी सिमिलर पैटर्न देखा, लेकिन रूरल एरियाज हिट थे। इन 2015-16 सिर्फ 7.2 मिलियन अर्बन रेजिडेंट्स यानी 1.6% पॉपुलेशन पुअर थी, लेकिन कोविड ईयर में मतलब 17.9%, कितना मेजर हो गया था यहाँ पर भी, ठीक है। So the pandemic's effect on urban areas was swift and severe, with sectors such as manufacturing, construction and services where urban poor are employed grinding to a halt. यही सारे केसेस मैंने बोले, रूरल एरिया कहाँ हिट था, अर्बन एरिया में कौन से लोग हिट थे, माइग्रेंट वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स एंड दोज इनफॉर्मल सेक्टर्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। आपने देखा होगा जितने भी हाउस हेल्प होते हैं ना, वो गांव से और दूसरे रीजन से आते हैं, वो क्या करते हैं, कोविड ईयर में सारे अपने गांव चले गए थे और बहुत टाइम बाद गांव से आए थे, और गांव जाके भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता, तो बहुत गंदी पॉवर्टी उस टाइम एक्सट्रीम पे पहुंची थी। एट अ नेशनल लेवल, population in extreme poverty surged from 8.3% of the population to 20.5% of the population पैंडेमिक में। 8.5%, तो कितना मेजर हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, 8.3 से 20.5 पर आ गए थे, ठीक है। बट द पैंडेमिक डेल्ट अ डिवास्टेटिंग ब्लो टू कंट्रीज पॉवर्टी रिडक्शन प्रोसेस। हम इतना 2015 से प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक में सब आके फू हवा ऐसी ब्लो आई, एक्सट्रीम ब्लो, की सब उड़ गया, जितने भी मेहनत करी इतने साल में सब हवा हवा हवा, ठीक है। सो हाउ एवर द स्टोरी डज, पर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, तो हवा हुआ, लेकिन हम भी डटे रहे, कर लो जितना उड़ाओगे हमारी मेहनत को, जितना पीछे करोगे हम उतना फाइट बैक करेंगे, कहते हैं ना हवा से थोड़ा हिला दोगे उसके बाद विल पुश बैक। दिस इज व्हाट हैपेंड, ओके। सो फॉलोइंग द इनिशियल devastation caused by pandemic, India's recovery from extreme poverty had both swift and significant। यानी उसके बाद बस 22.5% रूरल पॉपुलेशन, 21% से अप्रोक्स 2.5% आ गई पॉपुलेशन वापस से, ठीक है। एंड इसी के बाद देखोगे तो पॉवर्टी लेवल जो हुई वो फेल टू 9.1 मिलियन, 1.7% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो वापस से आ गए, हम रिकवर कर गए, ठीक है। नेशनली द नंबर पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली, 2.2% हो गई वापस से पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में आई थी पैंडेमिक के बाद, यानी जो ट्वेंटीज के लेवल पे डबल डिजिट्स में मेजरली पहुंच गई थी, वो वापस से सिंगल डिजिट्स में आ गई, ओके। यानी रिडक्शन हुई, तो रैपिड डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी लेवल में 2021 के बाद, एंड इट इज टेस्टामेंट टू इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की हम 2015 से मेहनत, जब आप सिंसेरली दिल से मेहनत करते हो ना किसी चीज के लिए, तो कोई ब्लो आएगा बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके हिम्मत, आपके हौसले सब मिटा देगा, आपको लगेगा कि हो गया, सब खत्म हो गया लाइफ में, सब डैमेज हो गया, लेकिन वो एक पुश होता है कभी कभी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब हार्डवर्क कर रहे हैं, बट हम लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो वो ब्लो, मैं मेरा मानना ये है कि वो ब्लो हमेशा, सी देयर इज नथिंग गुड इन द पैंडेमिक,
आई टोटली अग्री। ठीक है, हम बस ये होता है कि जब कुछ चला जाता है तो हम कहते हैं टाइम आया होगा, जबकि टाइम नहीं आया था। मतलब लापरवाहियां थी बहुत सारी, बट ठीक है, अब मन को बहलाने के लिए कुछ तो आप बोलोगे ना, अदरवाइज स्क्रिप्ट करते रहोगे, रोते रहो, टाइम खराब करते रहो, या फिर आगे बढ़ो। तो आई ऑलवेज थिंक कि ये जितने ब्लो होते हैं ना आपको आपकी लाइफ में, जब ये हिट करते हैं और आप कहीं के नहीं रहते, आपको नीचे गिरा देते हैं। तो एक बार आप गिर गए, आप ऊपर माउंटेन टॉप से नीचे गिर गए, तो अब इससे नीचे जाने को तो कुछ नहीं बचा ना। अब कोई कितना ही ब्लो आ जाए, आप ऑलरेडी जमीन पर हो, आप इससे नीचे तो कहीं नहीं गिर सकते। मैं कह रही हूँ आप गड्ढे में पहुंच गए, आप इससे नीचे तो कहीं नहीं गिर सकते, क्योंकि अब आप इससे नीचे गिर ही नहीं सकते। तो कोई ब्लो आपको हिला ही नहीं सकता, अगर आपकी हिम्मत, मतलब आपके हौसले मजबूत है ना, आप हिम्मती हो अगर, और आपने सोच लिया कि दुनिया कुछ कर ले, आपको जो करना है आपको करके ही दिखाना है लाइफ में। किसी के बस की नहीं है आपको रोक के दिखा दे। यही पैंडेमिक को हमने जवाब दिया कि हमारी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, हमारा जो मेहनत थी 2015 से, वो इतनी पक्की थी कि एक ब्लो आएगा, कुछ टाइम के लिए हम हिलेंगे, लेकिन हम वापस अपनी जगह पे डट के खड़े होंगे, क्योंकि हमने पूरा हार्ड वर्क दिया है, वही करना है लाइफ में। पैंडेमिक स्टोरी से, एक न्यूज़पेपर से, मैं इसीलिए बोलती हूँ ऑथर के इमोशंस देखो, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली पिरोई हैं बातें, कि आपकी लाइफ में भी वर्क कर रही है। सो आप किसी भी स्टेज में हो ना लाइफ में, और कोई भी ब्लो आया है आपकी लाइफ में, सो पर्सनली आई एम ऑल्सो नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट, एंड आई, स्क्रीन पे आपको जो लग रहा है, बट मेरे हौसले बहुत मजबूत है, और इतने हैं कि मैं, जो मुझे करना है मैं करके दिखाऊंगी, और वो मेरा काम बोलेगा मेरे लिए, मैं भी नहीं बोलूंगी। तो आपके हौसले इतने मजबूत होने चाहिए लाइफ में भी। आई थिंक दिस वाज अ मोटिवेशनल सेक्शन इन द पॉवर्टी एस्पेक्ट, but yeah, let's continue. And yeah, the rapid decline in poverty levels. So yeah, several factors explained this sharp rebound. First and foremost, तो sharp rebound हुआ कैसे, क्या factors थे? The Indian government's intervention during and after pandemic played a crucial role. Programs like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which provided cash transfer and free food distribution, helped millions of people survive the immediate economic fallout. कि जो एकदम से हुआ उसमें गवर्नमेंट ने हेल्प करा, लेकिन उसके बाद एक्सपैंड करा मनरेगा स्कीम, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसने ऑफर किया रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वाइटल था वो सपोर्ट करने में रूरल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, एंड जो जो लोग अपनी इनकम खो चुके थे पैंडेमिक में, उनको नरेगा ने हेल्प करा। एडिशनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने इंश्योर करा कि भाई फूड सिक्योरिटी तो रहे, ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो ना हो, फूड सिक्योरिटी तो रहे, इंसान को खाना तो मिले, जब उसको इनकम नहीं मिल रही है, उसकी जॉब चली गई है, तो एटलीस्ट खाना मिलता रहे, पहले बेसिक नीड। फिर मनरेगा एक्सपैंड किया, फिर गरीब कल्याण योजना से पैसे भी डाले। सो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें करी। ठीक है, प्रिवेंटिंग द वाइड स्प्रेड हंगर ड्यूरिंग द वर्स्ट क्राइसिस। ठीक है, इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी विच हैड बोर्न the brunt of pandemic's impact also showed resilience once the economy reopened. And as lockdowns were lifted, the business resumed operation. Many informal workers were able to return to their previous jobs, contributing to the rapid reduction in the poverty. The swift recovery of the sectors such as agriculture, construction, retail played a key role in pulling millions of people out of extreme poverty. वापस से जो लोगों ने काम शुरू किए, जो उन्होंने रेजिलियंस दिखाई, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं हम करेंगे, नहीं अभी भी हो सकता है, नहीं हम सब कुछ नहीं हारे हैं, उसी ने बाकी लोगों को भी एक्सट्रीम पॉवर्टी सिचुएशन से बाहर निकाला। जैसे मैं बोलती हूँ दिवाली का टाइम है, आई ऑलवेज से कि दिवाली इज नॉट फॉर Amazon, दिवाली इज फॉर पीपल। सो रिसेंटली आई वेंट टू अ शॉप, एंड मैंने वहां पे देखा कि एक शॉप है, यूटेंसिल्स का शॉप है एंड किचनवेयर का शॉप है, एंड वो उस शॉप में उन्होंने जितने जितने लोग बाय नहीं कर रहे उससे ज्यादा बच्चे काम पे लगा रखे हैं। बर्तन निकाल के दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, गिफ्ट पैक दिखा रहे हैं, बाहर एक आदमी बिठा दिया जो गिफ्ट रैपिंग करके दे रहा है। सबको इनकम जा रही है ना, सबकी फैमिली चल रही है। ठीक है, वो जो पैसा कमा रहे हैं, वो उसके बाद अपने जितने भी लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो उनको पैसा दे रहे हैं, उनके घर चला रहे हैं, उनकी फेस्टिवल मना रहे हैं। तो यार आप क्यों नहीं फिर वो करते, आप जाओ जाके लोकल लोगों से लो। एंड प्लीज 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 गाइस, जस्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स डोंट बार्गेन, क्योंकि आपको लगता है ये महंगा दे रहा है, ये चोर है। नहीं यार, उनका यही टाइम है कमाने का, वो सीजनल वर्कर है, फेस्टिवल तो सबका होता है। तो आप दो, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, अगर आप प्लीज स्पेंड करो, क्योंकि इतना रख कर भी इतने पैसे, सी पैसा होना और खर्चने का दिल होना दो अलग चीजें होती हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है पर आपका खर्चने का दिल नहीं है ना, सो आई एम सॉरी, आपका वो पैसा भी ज्यादा नहीं टिकना आपके पास। सो इट्स बेटर कि इकोनॉमी में थोड़ा फ्लोट करो, करो सेव यार, मैं नहीं कह रही बहुत खर्चा करो, बट उन गरीब लोगों से बार्गेन मत करो एटलीस्ट। ठीक है, आई थिंक दैट इज समथिंग जो इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एडवाइस सजेस्ट तो नहीं करूंगी, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, एंड बाकी तो आई थिंक आप लोग ज्यादा समझदार हो। सो या,
And then let's see, the fluctuations in extreme poverty between 2015 and 23 hold important implications for India's future economic and social policies. The rapid reduction in poverty after pandemic suggests that India is back on track toward meeting its sustainable development goals. And उसके बाद अब जो से कंट्री आगे बढ़ रही है हमारी, it is essential to focus on formalizing the labor market, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा ब्रंट झेला. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम फॉर्मल करें थोड़ा मार्केट को, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, और इम्प्रूव करें हेल्थ केयर को, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत इम्पैक्ट हुआ था, हमने देखा था, तो उसे थोड़ा इम्प्रूव करें. Strengthening India's social protection system, such as building resilience within the economy, will be key to ensuring that the country can weather future shocks without experiencing a repeat of sharp rise in poverty. So अभी पैंडेमिक जैसे एक ग्लो आया, बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्लो था, आपको नहीं पता था. बट लाइफ में जब एक बार ऐसा ग्लो आ जाता है ना, तो आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करो मेंटली, फिजिकली एंड पॉलिसी वाइज, कि अब ऐसा ब्लो आ भी जाए तो आप वो, सी आप एक्सटर्नल रीजंस तो नहीं रोक सकते, कोई ब्लो तो आप नहीं रोक सकते, बट आप खुद को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हो कि कोई ऐसा ब्लो आपको ना हिला पाए आपकी जगह से, इतना स्ट्रांग बन जाओ. तो दैट इज समथिंग दैट इज फॉर द कंट्री एंड दैट्स द एडवाइस. And those are the lessons that we can focus on formalizing the economy. So we are praising the policies because they helped us. So that means they were successful in some or the other way, and हम लोग को करते रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना, हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए, फॉर्मलाइज पे फोकस करना चाहिए, प्रोटेक्शन स्कीम्स और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कि पहले तो ये था कि हमने पहले चल रही थी पॉवर्टी रिडक्शन में, पैंडेमिक में हिला, उसके बाद वापस रिकवर करा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि पैंडेमिक में हिल भी ना पाए. ठीक है, इतना स्ट्रांग कि कोई भी ब्लो आ जाए लाइफ में, आप अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं तो खड़े हैं. राइट. आप हिल गए थे पहली बारी, आपको नहीं समझ आया था पहली बारी, होता है लाइफ में, सबके साथ होता है. तो इतना अब तो पता चल गया ना कि आप किस लेवल तक हिल सकते हो और किस लेवल तक लाइफ आपको, इससे भी स्ट्रांग कुछ ब्लो हो सकता है लाइफ में जो आ जाए. हु नोस. स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा ना. सो यू हैव टू बी रेजिलिएंट एंड पॉलिसी शुड बी सच दैट should build up the resilience even further. That is what we were discussing in this video. And with that, I'll wrap up the video. And I always give a personal touch in the article. So I hope you found it useful in some or the other way. If yes, like the video and subscribe to the channel, guys. Please do subscribe so that every time I upload a video, you get notified. That is important. And every subscription, trust me, whenever each one of you subscribe or watches the video, even for a few minutes, it truly means a lot to me. And I'm very, very grateful to each and every one of you. Trust me, I feel blessed. So thank you so much for being in my life. And with that, I'll wrap up. Keep smiling, stay healthy. I'll see you tomorrow. Bye.